on the opportunities in UK universities as well. Hello. Yes. These are the major big countries: United Kingdom, USA, Canada, New Zealand, Australia. Then there are more than 23 European countries. In that, popular are Germany, France, Poland, Spain, Denmark. Then Singapore is an Asian country, and then Ireland, which is neighboring to the United Kingdom. So these are all the major countries where the students they plan to go for the studies. In UK, there is a one-year master's program. If it's an internship or a placement year, so there can be a 2 years master's program. In USA, it's a USA, Canada, Australia. It's a compulsory 2 years master's program. New Zealand, it's a 1 year, 1 to 2 years of masters. Europe, Germany, France, Poland, Spain, Denmark, major European countries also have a 2 years master's program. Singapore has a 1 year, Ireland has a 1 year, but there are colleges over there which are government colleges where the students study. These Now this is the information for masters. Similar goes for the bachelors. In UK, Singapore, and Ireland, the bachelor's degree is for 3 years, and if there is a placement year or an internship year, so it would be a 4 years where the students would be getting the opportunity to work full time. And apart from that, United States, Canada, Australia, European countries, the bachelor's degree is similar to the Indian pattern, which is a 4 years degree. India has both the types of patterns. Like if you want to study bachelor's in computer science, so it would be a 3 years degree in India. But if you want to do a bachelor's in engineering in computer, so it would be a 4 years. So engineering degree in India is 4 years, and a regular bachelor's degree from BCom, BBA, so it remains in India as a 3 years program. So this is similar kind of difference in these major countries. Next, please. These are the major exams which the students can prepare. For an example, the IELTS is one of the major popular program. समीर भाई जी, इफ पॉसिबल हम लोग जो है वो उर्दू इंग्लिश में सेशन ओके ओके जी 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 यस यस थैंक यू एग्जाम्स ये मेजर एग्जाम्स है IELTS, IEL का, TOEFL, GRE, GMAT, SAT. IELTS इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ये ब्रिटिश काउंसिल और IDP ऑस्ट्रेलिया अवॉर्डिंग बॉडी रन करती है. यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इसको रन करती है यूके के अंदर अगर एग्जाम देना है तो. लेकिन सारे मुल्कों में, पूरी दुनिया में यहाँ पे IELTS के सेंटर्स हैं और स्टूडेंट इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं. सिमिलर पैटर्न में IEL का एग्जाम है और TOEFL है जो थोड़े कम पॉपुलर है. बहुत सारे यूनिवर्सिटीज इसको भी एक्सेप्ट करते हैं. IEL का इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी असेसमेंट. TOEFL का मतलब है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज. फिर है US में GRE, ग्रेजुएट रिकॉर्डिंग एग्जामिनेशन. मेजरली है मास्टर्स के लिए, इंजीनियरिंग में जाने के लिए स्टूडेंट GRE का एग्जाम देते हैं. फिर GMAT है, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट. ये पॉपुलर MBA कोर्सेज के लिए पूरे दुनिया में जो टॉप MBA कोर्सेज है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी लंदन बिजनेस स्कूल, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. तो जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है जिनको GMAT चाहिए, वहाँ पे GMAT का एग्ज़ाम देना होता है. इसका मार्किंग 600 to 750 के बीच में स्टूडेंट्स ने स्कोर करना है ज़्यादा से ज़्यादा. यूजुअली 680 एंड अबव मार्क्स होने चाहिए, तो GMAT का आपका रिजल्ट स्ट्रॉन्ग माना जाता है. फिर 12th के बाद USA में ये एग्ज़ाम होता है. इंडिया से जो जिन्होंने भी 12th किया है और उनको USA बैचलर डिग्री के लिए जाना है, जिनका बजट थोड़ा ज़्यादा है,
तो वो यूएस जाते हैं, 4 साल की डिग्री होती है, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम देते हैं। ये मैं सब आपको थोड़ा ओवरऑल ब्रीफ करते रहूँगा, क्योंकि मेजरली ये सारे एग्जाम्स के बारे में आप लोग और रिसर्च कर सकते हो। लेकिन सबसे पॉपुलर एग्जाम है IELTS, जिसके अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। IELTS एकेडमिक और IELTS जनरल ट्रेनिंग। जनरल ट्रेनिंग जो जॉब्स के लिए और वर्क वीजास पे जाते हैं उनके लिए लगता है, तो उसको वो माना जाता है कि थोड़ा कम डिफिकल्ट होता है। उससे और थोड़ा डिफिकल्ट होता है IELTS एकेडमिक एग्जाम। इसमें भी 2 पैटर्न है, जो यूके यूनिवर्सिटी जा रहे हैं वो IELTS यूके भी एग्जाम देते हैं, और जो बाकी दीगर यूनिवर्सिटीज में और वर्ल्ड में जा रहे हैं तो वो IELTS एकेडमिक देते हैं। जैसा न्यूजीलैंड जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, तो आप IELTS एकेडमी लेते हो। और इसका पैटर्न इस तरीके से होता है कि लिसनिंग 30 मिनट्स का होगा, रीडिंग 1 घंटे का होगा, राइटिंग 1 घंटे का होगा और स्पीकिंग 15 मिनट का होगा। इसकी एग्जाम फीस है IELTS एकेडमिक UKVI की 18,600 और IELTS एकेडमिक रेगुलर एग्जाम की फीस है 13,800। तो इसके अंदर खाली एक सिक्योरिटी का रीजन होता है कि इसमें IELTS एकेडमिक UKVI में सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, CCTV कैमरा ज़्यादा लगे हुए होते हैं और वो डायरेक्ट UK हाई कमीशन को रिजल्ट भी जाता है, जिससे उनको सिक्योरिटी का कंप्लीट आइडिया होता है। बाकी सारी दुनिया में IELTS एकेडमिक एक्सेप्टेड है, तो स्टूडेंट्स जिस कंट्री में जा रहे हैं वो हिसाब से वो ये एग्जाम दे सकते हैं। लिसनिंग के अंदर 30 मिनट्स में 4 पैसेजेस आते हैं, वो 4 पैसेजेस को आंसर करना है। फिर रीडिंग में 1 घंटे में 3 पैसेजेस आते हैं, 13 और 14 क्वेश्चंस के। ऐसे 40 में से आपको 30 राइट लाने हैं, तो आपको 7 बैंड एंड अबव स्कोर करने मिलेगा। राइटिंग में 2 पैसेज आएंगे, एक 20 मिनट्स का, एक 40 मिनट्स का, तो आपको बहुत अच्छे से वो एड्रेस करना है। और स्पीकिंग नेक्स्ट डे एक एग्जामिनर होगी आपके सामने, वो आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में 3 स्लॉट में 12 से 15 मिनट में क्वेश्चंस पूछेगी और आप उसका बहुत सिंपल तरीके से कि इंटरव्यू की तरह आंसर्स देते हो। तो इस तरीके से IELTS एकेडमिक एग्जाम होगा। नेक्स्ट प्लीज। अभी जो करंट पैंडेमिक चल रहा है और IELTS जो कि फिजिकल एग्जाम होता है, यूजुअली इंडिया के 5 स्टार होटल्स में इसका सेंटर्स होते हैं, जो ब्रिटिश काउंसिल और IDP ऑस्ट्रेलिया जॉइंटली रन करते हैं। सुबह में क्वेश्चन पेपर आता है, सब वो रिलीज होता है और फिर वो 1 दिन में एग्जाम्स कंप्लीट होते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर बाहर ले जाने नहीं मिलता है, तो वो बड़ा सिक्योर्ड एग्जाम होता है। तो IELTS अभी हो नहीं पा रहा है, तो वो उस वजह से 4 से 5 नए एग्जाम्स जो ऑलरेडी एग्जामिनिंग वर्ल्ड में थे, तो उनको थोड़ा सा एक्सेप्ट करना चालू किया है पैंडेमिक में, जो घर बैठ के आप कंप्यूटर पे आपका कैमरा स्टार्ट करके ये एग्जाम दे सकते हो। जैसे IELTS इंडिकेटर, फिर TOEFL IBT इंटरनेट बेस्ड टेस्ट, IEL का इंटरनेट बेस्ड टेस्ट, डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट और लियो इंग्लिश, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन, और OET ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल के अपने एग्जाम्स है, जो वो यूनिवर्सिटीज के साथ मिल के उनके पैटर्न पे घर बैठे बैठे ये दे सकते हो। तो इसकी फीस भी थोड़ा कम है, लेकिन ये टेम्पररी सारे वर्ल्ड के यूनिवर्सिटीज ने एक्सेप्ट किया है स्टूडेंट को क्विक एक्सेप्टेंस देने के लिए। और इस अक्टूबर इनटेक जो अभी जो रिसेंट सितंबर 2020 या लेटर स्टेज में वो अक्टूबर इनटेक होगा, तो वो उस तरीके से स्टार्ट करना। यस प्लीज। मेजर आपके कोर्सेज इस तरीके से होते हैं, मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग में और बाकी सारे कोर्सेज है। BBA, MBA, MSc फाइनेंस, MSc इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। फिर इंजीनियरिंग के कोर्सेज है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, लॉ, डिजिटल मीडिया, मास कम्युनिकेशन, फिल्म प्रोडक्शन, मरीन इंजीनियरिंग, डिजिटल आर्ट्स। तो ये एक स्टैंडर्ड कोर्सेज है जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, अगर किसी को कोर्सेज पे बात करना है या कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, तो आखिर के सेशन में हम क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकता हूँ। और ज़्यादा करके स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूँगा कि बैचलर्स डिग्री इंडिया में करें,
और मास्टर्स के बाहर जाए तो आप अपने आप को पॉलिश करते हो, आप अपने आप को अपग्रेड करते हो, इस तरीके से आपकी पढ़ाई होती है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन, ये बड़ा स्टैंडर्ड लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स का। सारे यूनिवर्सिटीज में ये ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स होंगे। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th 12th डिग्री के सारे मार्कशीट, सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री का अवार्ड, अगर डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा, डिग्री है तो डिग्री। पासपोर्ट इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। पासपोर्ट का फ्रंट पेज लास्ट पेज यूनिवर्सिटी को तो देना ही है। उसके अलावा पासपोर्ट इज योर हॉल टिकट फॉर योर एग्जाम्स, जो पहले आप लोग ने सारे एग्जाम देखे हो, IELTS, GRE, GMAT, SAT, TOEFL, तो उसके लिए आपका पासपोर्ट आपका पहला डॉक्यूमेंट है, प्रायर डॉक्यूमेंट है। और कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए आप जब एडमिशन लेते हो तो पासपोर्ट से आपका इंटेंशन मालूम पड़ता है कि हाँ आपके पास पासपोर्ट है, आप पढ़ने आना चाहते हो। तो पासपोर्ट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जिन जिन के पास नहीं है वो क्विकली इसको अप्लाई करें और जल्दी से जल्दी पासपोर्ट हासिल करें। IELTS, TOEFL, PT और दीगर स्कोर कार्ड्स, वो जिस यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए जो स्कोर कार्ड चाहिए उसका आपको प्रिपरेशन करके वो आपको हासिल करना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बड़ा कॉमन नाम है ये इंटरनेशनल एजुकेशन वर्ल्ड में। इसको SOP भी बोलते हैं और इसको पर्सनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जिसमें आपको 1 से 2 पेज आपके बारे में, आपके एकेडमिक के बारे में और आपके चाहत के बारे में लिखना है कि मैं ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहा हूँ या क्यों जा रही हूँ। फॉर एन एग्जांपल, आप अगर जा रहे हो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज फॉर एन एग्जांपल और MBA में जा रहे हो, तो आप लिखेंगे कि आपने क्या पढ़ाई किया है। आपने समझो डिग्री इन इंजीनियरिंग किया है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग किया और MBA करना चाहते हो, तो आप लिखोगे कि आपने ये पढ़ाई किए है, आपने इस कंपनी में एज एन जूनियर इंजीनियर से लेके असिस्टेंट मैनेजर के लेवल तक काम किए हो। अभी आपको लग रहा है कि आपने MBA करना चाहिए, MBA करके आपकी जिंदगी बहुत और बेहतर हो जाएगी और आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा। इस तरीके से आप आपका स्टेटमेंट उसके अंदर देंगे 1 से 2 पेज। बहुत ही कंस्ट्रेंट आपको बनाना है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बनाना है। इसका भी मैं गाइडेंस आपको कर सकता हूँ पर्सनली। LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये आपको आपके एग्जिस्टिंग कॉलेज से लाना है जहाँ से आपने डिग्री कंप्लीट किया है। फॉर एन एग्जांपल, आपने साबु सिद्दीक कॉलेज से किया है या रिजवी कॉलेज से किया है या कोई भी इंडिया के कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किया है, तो आपको 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लाना होता है कि आपके प्रिंसिपल आपके बारे में लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, इसने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, इसने ये स्पोर्ट्स में अच्छा था, या जो भी आपके क्रेडेंशियल्स है पिछले लास्ट 3 इयर्स में, तो वो LOR में लिख के देते हैं, जिसके अंदर वो ओरिजिनल लेटर हेड पे होता है, कॉलेज के लेटर हेड पे होता है। और एक प्रिंसिपल दे सकते हैं, एक वाइस प्रिंसिपल दे सकते हैं, कोई फैकल्टी दे सकते हैं, कोई लेक्चरर दे सकते हैं, लाइब्रेरियन दे सकते हैं, या कोई कंपनी के HR दे सकते हैं, कंपनी के ओनर दे सकते हैं। अगर आपने जॉब किया है तो एक प्रोफेशनल LOR भी चल सकता है। तो एक एकेडमिक LOR होता है और एक प्रोफेशनल LOR होता है। फिर ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट, ये UK के लिए लगता है, बाकी दूसरे कंट्रीज के लिए अपने अपने कुछ मेडिकल टेस्ट होंगे तो वो आपको अप्लाई करना होता है इंडिया में और आप देते हो। आयरलैंड के लिए पुलिस NOC भी लगता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है तो वो पुलिस NOC ऑब्टेन करके या तो आप पुलिस स्टेशन से या तो फिर आप पासपोर्ट ऑफिस से वो कॉपी अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम काम करने की इजाज़त है, और इंटरनेशनल जो भी स्टूडेंट्स इंडिया से जा रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बाहर जाके इन सारी कंट्रीज में जो जो मैंने लिस्ट किया हूँ वहाँ पे वो लोग पार्ट टाइम और फुल टाइम काम एलिजिबल है, और वेकेशंस में वो फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। फिर इंटर्नशिप ईयर है और सैंडविच ईयर है या प्लेसमेंट ईयर है, तो उसमें भी वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। यहाँ पे पार्ट टाइम और फुल टाइम काम करने का मतलब है कि वहाँ का मिनिमम वेजेस अर्न करना है। जैसा कनाडा में $12 है, $12 to $14 है। UK में £7.50 to £10-12 पर आवर है।
तो इस तरीके, और फिर उसके बाद आपको पैकेजेस मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरीज। तो वहाँ का जो स्टैंडर्ड पैकेज है वो स्टूडेंट्स अर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनको अर्निंग में भी मदद होती है, उनको पार्ट टाइम जॉब में वो लोग पढ़ाई के साथ साथ काम करके अपना गुजारा कर सकते हैं। और जो फंड्स यहाँ से अवेलेबल रखे हैं लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, तो वो भी वो बचा सकते हैं, जो उनको और आगे के लिए काम आ जाएंगे। नहीं तो यूजुअली स्टूडेंट 4 से 5 लाख रुपया साल का निकाल के रखते हैं अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, अगर उनको पार्ट टाइम काम नहीं करना है तो। इस तरीके से यस। इंटर्नशिप करके क्या बेनिफिट है? जिस तरीके से हम इंडिया में इंटर्नशिप करते हैं उसी तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरनेशनल कंट्रीज में जाके अब इंटर्नशिप करने की, पढ़ाई के साथ साथ, अगर वो पढ़ाई का पार्ट है तो। नहीं है जैसा यूएस और ऑस्ट्रेलिया कनाडा में 2-2 साल के मास्टर्स कोर्सेज है, 4 साल की डिग्री है, उसमें इंटर्नशिप नहीं है, तो वहाँ पे हम आपको अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। लेकिन अगर आप यूके जा रहे हो या सिंगापुर या न्यूजीलैंड जा रहे हो तो वहाँ पे आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कोर्सेज में ज़्यादा करके इंटर्नशिप भी होते हैं कि आपको इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलता है। फिर इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, लोगों के साथ आपके कॉन्टैक्ट बनते हैं, लोगों के साथ आप बातचीत करते हो, आप का अच्छे से उठना बैठना हो जाता है बहुत अच्छे लोगों के साथ। तो इससे आप आपका प्रोफेशनल स्किल्स को शार्प करते हो, पॉलिश करते हो। फिर आगे जाके जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए बहुत आसान हो जाता है। पता चलता है आप एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो, एक बड़ी कंपनी है, फॉर एन एग्जांपल आपने इंडिया में बीएनपी पारिबास मुंबई में काम किया, फिर वही बीएनपी पारिबास एक मल्टीनेशनल कंपनी है, यूरोपियन फाइनेंस कंपनी है, और फिर यूके में भी उनका ऑफिस है, यूएस में ऑफिस है, वहाँ पे आपने इंटर्नशिप किया, पता चलता है उन्होंने ही आपको जॉब ऑफर कर दिया। तो इसके चांसेस, इसके पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाते हैं। फिर आपका सीवी के ऊपर एक इंटरनेशनल टैग लग जाता है। अगर आप इंडिया वापस आ रहे हो तो इंडिया में जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, मोर देन 1500 मल्टीनेशनल कंपनीज है, तो वहाँ पे आपका सीवी बहुत इम्प्रेशन रखता है, और आपको इंडिया में भी बहुत अच्छे जॉब्स मिलने की ये एक हेल्प हो जाती है। जस्ट एक मिनट सारा। Opportunity to develop your skills and grow. Opportunity to develop your skills and grow in confidence. आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है जब आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हो। आपको बहुत सारा नॉलेज हो जाती है कि दुनिया कैसे काम करती है, तो दूसरे कंट्रीज में, दूसरे मुल्कों में लोग किस तरीके से काम करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या वहाँ का कल्चर है, वहाँ का क्या सोशल कल्चर है, कैसा लाइफस्टाइल है, किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों का आपको बहुत हेल्प होता है जब आपको इंटरनेशनल इंटर्नशिप और एक्सपोजर मिलता है। यस प्लीज। यस, ये सबसे बड़ा रीज़न बेनिफिट होता है स्टे बैक ऑप्शंस। आपको पढ़ाई के बाद वहाँ पे काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट हर कंट्री के लिए, हर यूनिवर्सिटीज का एक इकोनॉमी का एक पार्ट होता है, वो इंटरनेशनल फीस लेके उस कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ, और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं कि इंडिया से इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करके इंडिया से जाते हैं, तो वहाँ पे उनको स्टे बैक ऑप्शन का मौका मिलता है। जैसा यूके में 2 इयर्स का स्टे बैक ऑप्शन है, कनाडा में 1 से 3 साल का स्टे बैक ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया में 2 साल, 3 साल, 4 साल, इस तरीके से पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है। यूएसए में भी वर्क स्टे बैक ऑप्शन है। फिर एक H1B वीज़ा अभी जिस मालूम पड़ा है कि उन्होंने उसको रोक दिया है टेम्परेरी रीजन से। तो ऐसे स्टे बैक ऑप्शन में वहाँ पे रहने के लिए मौका मिलता है और सेटल होने का मौका मिलता है। यस प्लीज। स्कॉलरशिप्स, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती है, ज़्यादा करके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पार्ट स्कॉलरशिप्स होती है, और बहुत ही कम फुल स्कॉलरशिप्स होंगे। उसके लिए स्टूडेंट्स को 1 से 2 साल या 3 साल पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एक स्कॉलरशिप है जिसका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह स्कॉलरशिप। वो इसलिए है क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पढ़ाई किया और वो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बने। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो इंडिया के पॉलिसी मेकर बने, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को उसकी बहुत
खुशी हुई तो उन्होंने डिजाइन किया कि हम एक इंडियन स्टूडेंट को ये एक स्कॉलरशिप दे। तो इसके चांसेस और इसके प्रोबेबिलिटीज 100 में से एक के हो जाते हैं। लेकिन अप्लाई तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जब तक अपनी डेप्थ को चेक नहीं करेंगे, कोई फेलियर का मज़ा नहीं लेंगे, तो आपको सक्सेस समझ में नहीं आएगी। फिर होते हैं पार्ट स्कॉलरशिप्स, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स है। नॉर्थम्ब्रिया ग्लोबल स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर वाइस चांसलर स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर वाइस चांसलर स्कॉलरशिप। जो यूनिवर्सिटी की फीस में से वो एक स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए एक काइंड ऑफ मोटिवेशन, एक काइंड ऑफ बर्सरी वो ऑफर करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको 70% मिला है तो आपको 1000 या 2000 पाउंड गारंटेड मिलेगा, या इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स में वो आपको गारंटेड मिलेगा। तो इससे जब वो स्कॉलरशिप आपके ऑफर लेटर पे आता है तो आपके पेरेंट्स को, आपके फैमिली को और आपको खुद को प्राउड फील होता है। कभी आप एजुकेशन लोन लेने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे भी वो एक अच्छा इंप्रेशन देता है कि आपको वाइस चांसलर स्कॉलरशिप मिला है 2500 पाउंड आउट ऑफ 15,000 पाउंड और 20,000 पाउंड। तो इसमें क्या होता है कि बैंक्स या कोई फाइनेंस कंपनी या कोई फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस आपको फंडिंग करने के लिए भी इंटरेस्ट होते हैं कि यस, ये स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी ने एक क्राइटेरिया से उनको एकेडमिक क्राइटेरिया या एग्जामिनिंग क्राइटेरिया, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। कभी IELTS में ज़्यादा मार्क्स मिल गए हैं, 7.5 बैंड स्टूडेंट ने स्कोर किया है, तो उस वजह से इंग्लिश के बेसिस पे उसको कुछ स्कॉलरशिप मिलती है। तो स्कॉलरशिप्स के अपने अपने पैटर्न्स होते हैं और अपने अपने कवायद होते हैं, तो उस तरीके से स्टूडेंट्स वो हासिल कर सकते हैं। यस प्लीज। ये काफ़ी सारे मल्टीपल UK यूनिवर्सिटीज़ हैं, मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी, नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी, कोवेंट्री, नॉर्थहैम्पटन, सैंडरलैंड, डे मॉन्टफोर्ट, एंग्लो रस्किन यूनिवर्सिटी, वॉर्सेस्टर, लेस्टर, डरहम, स्टर्लिंग, न्यूकैसल यूनिवर्सिटी, सिटी यूनिवर्सिटी लंदन, स्ट्रैथक्लाइड। ये सारे बड़े बड़े नाम हैं यूनिवर्सिटीज़ के, मल्टी मिलियन पाउंड कैंपसेस है। यहाँ पे पढ़ना, यहाँ पे इनमें पढ़ना, एक्सपीरियंस करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसमें एक ये चीज़ को हासिल करने में ही एक अपना बड़ा सक्सेस है। बड़ा हार्डवर्क होता है ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए और अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी करने के लिए। यस प्लीज। ये भी और दीगर यूनिवर्सिटीज़ है, सब काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप 20 में आता है, एस्टन यूनिवर्सिटी टॉप 20-30 यूनिवर्सिटीज़ में आता है, किंग्स कॉलेज लंदन, लंदन का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के अंदर वो आता है। क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यहाँ MBBS का भी प्रोग्राम है। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, ये रसल ग्रुप की टॉप 20 यूनिवर्सिटी में आती है। तो इस तरीके से ये सारे यूनिवर्सिटीज़ है। मैं आपको डिटेल्स भी आके शेयर करूँगा, या आप शहजाद भाई से ले सकते हैं। A plan to study free of cost in UK। अभी मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा कि एक आम बच्चा भी अपने आप को सोच सकेगा कि यस, ये अभी नहीं या आगे या कभी भी लाइफ में मैं ये कर सकता हूँ या करने की उम्मीद रख सकता हूँ। तो जिस तरह से मैंने इस चीज़ को हासिल किया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को भी ये बताऊँ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आप UK यूनिवर्सिटीज़ में 1 साल की पढ़ाई है और 1 साल इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप का मतलब आप फुल टाइम काम करते हो, और जहाँ पे आपको कम फीस में जाने का मौका मिलता है। ये कुछ नाम है: यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर, नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी और हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी। एक और नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर में 10 लाख रुपए में तक भी एक्सपेंस करके आप जा सकते हो, और पेड इंटर्नशिप के ईयर में आप 15 से 16 लाख रुपए कमा सकते हो। और फिर इस तरीके से 2 से 3 साल के अंदर आप आपके पूरे पैसे रिकवर करके इंटरनेशनल लेवल पे MBA करके वहाँ पे जॉब भी कर सकते हो। मिनिमम इंडिया भी आ गए तो इंडिया में भी आपको बहुत अच्छी 30-40,000 रुपीज़ की तो जॉब मिलेगी इंशाल्लाह। इस तरीके से आप काम भी कर सकते हो। तो इसके लिए आप मुझे क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हो, तो मैं इन डेप्थ आपको आंसर दे सकता हूँ। यस प्लीज। ये मैंने आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन रेडी किया हूँ। एंग्लो रस्किन यूनिवर्सिटी है, ये कैम्ब्रिज में है, इसका एक कैंपस कैम्ब्रिज में है
और एक कैंपस चेम्सफोर्ड में है। कैम्ब्रिज मतलब वो, यस आप लोग सही समझ रहे हो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की नेबरिंग यूनिवर्सिटी है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज वर्ल्ड की टॉप सेकंड यूनिवर्सिटी है। उसका एमबीए की फीस 55 लाख रुपीस है, जिसका नाम है जज बिजनेस स्कूल। उसके लिए भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वहाँ जीमैट भी लगता है। लेकिन उसके ही बगल में ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी यूनिवर्सिटी है जो 60 एकड़ कैंपस में है, 15 मिनट्स ही है वहाँ से। वहाँ पे एमबीए विद प्लेसमेंट प्रोग्राम है, एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस विद प्लेसमेंट प्रोग्राम है, एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस विद प्लेसमेंट, एमएससी सप्लाई चेन मैनेजमेंट विद प्लेसमेंट, एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद बिग डेटा प्लेसमेंट और एमएससी कंप्यूटर साइंस विद प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये है कि एक साल आप पढ़ाई करेंगे, एक साल फुल टाइम काम करेंगे, और इन कोर्सेज की फीस, एमबीए की फीस 16,000 पाउंड है। यहाँ पे 4,000 पाउंड तक आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, फुल फीस डिस्काउंट भी है 1,000 पाउंड, और बाकी एमएससी कोर्सेज की फीस 13,500 पाउंड है। आपको मास्टर्स में जाने के लिए डिग्री में 50% चाहिए। अगर आपको 12th में इंग्लिश में 65 मार्क्स मिले हैं 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट में, तब भी आपका IELTS एग्जाम भी वो वेवर कर देंगे। ये उनके पास एक पावर है यूके हाई कमीशन की तरफ से कि एक यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट को खुद चूज कर सकता है। अगर समझो आपको IELTS में 6.5 बैंड स्कोर नहीं किए हो, तो आपको 12th में इंग्लिश में 65 मार्क्स मिले तो आप एलिजिबल है यहाँ पे पढ़ने के लिए। उसी तरीके से 8 यूनिवर्सिटीज इस तरीके से और है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच, सैंडरलैंड, सोलैंड, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, टीसाइड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर जिसकी फीस बहुत ही कम है, लेकिन वो लंदन से 3 घंटा दूर है। यूनिवर्सिटी कोई खराब नहीं है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, और उसकी फीस 12 लाख तक आती है। वो तो इनफैक्ट 3,000 पाउंड तक स्कॉलरशिप भी देते हैं, क्योंकि वो लोग जियोग्राफिकली लंदन से 3 घंटा दूर है, प्रेस्टन में है, तो वो चाहते हैं कि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स उनके पास आए और एक अच्छे नंबर पे स्टूडेंट्स को वो एक्सेप्ट करें। नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी ये न्यू कैसल में भी है, ये लंदन कैंपस भी है, ये भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटीज के नाम आप यूट्यूब पे गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हो, बहुत अच्छे इनके वीडियोस आपको मिलेंगे और आप देख सकते हो। नेक्स्ट प्लीज। कुछ सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज है यहाँ पे, फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के भी कोर्सेज की कुछ इमेज डाला हूँ। मास्टर्स इन सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग विद एडवांस प्रैक्टिस, मास्टर्स इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जैसा सिविल इंजीनियर है तो वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में जा सकता है। और किंगस्टन यूनिवर्सिटी में भी मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, ये भी लंदन की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। फिर स्टूडेंट्स बैचलर्स के बाद आर्किटेक्चर में जा सकते हैं, BA ऑनर्स आर्किटेक्चर, ये 3 साल का डिग्री कोर्स है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो भी यूके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं या US में पढ़ रहे हैं या किधर भी, तो वो उनकी यूनिवर्सिटी, अगर आर्किटेक्चर में जाना है तो उनकी यूनिवर्सिटी इंडिया से रीबा का पार्ट होना चाहिए, मतलब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया की एक बॉडी है जो रीबा अफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज को एक्सेप्ट करती है। रीबा का मीनिंग है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स। तो उस तरीके से जो 12th करके जो बैचलर्स इन आर्किटेक्चर इंडिया में नहीं एडमिशन मिल रहा है और बाहर जाना चाहते हैं, थोड़ा सा इनके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा, 40 से 50 लाख का उनका बजट हो जाएगा। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि इंडिया में स्टडी करे और मास्टर्स के लिए चले जाए। तो मास्टर्स के लिए भी बहुत ऑप्शंस है, वो भी रीबा पार्ट 2 एक्सेप्टेड कोर्सेज होने चाहिए और इस तरीके से हो जा सकता है। yes, please. यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच के अंदर एक लास्ट ईयर बहुत ही अच्छे कोर्सेज आए हैं जो कि बहुत ही रेलेवेंट है। मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, मास्टर्स इन मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, MSc इन सिविल इंजीनियरिंग, MSc इन फार्मास्यूटिकल साइंस, MSc इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। फिर आपने ये नाम शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, MSc in Water Waste Environmental Engineering, MSc Applied Food Safety and Quality Management, MSc Food Innovation। ये थोड़े इनोवेटिव कोर्सेज है। दुनिया अभी स्टेज 2 में जा रही है, बहुत एडवांस लेवल पे लोग
अपने अपने आप को इनोवेशंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसा कि वाटर एंड वेस्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का कोर्स है, तो वहाँ पे हम लोग ये पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से हम वाटर वेस्ट वाटर को बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं और वापस से उसको साइकिल में ला सकते हैं। और किस तरीके से, जैसा हमारे पास समंदर ही पूरा पड़ा है, ओशंस है और 70% सॉल्ट वाटर है, तो ये कोर्स करके लोग गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम कर सकते हैं कि हम किस तरीके से माइट भी समंदर के खारे पानी को इंजीनियरिंग की मदद से और उस तरीके से लेके उसको ड्रिंकेबल वाटर बना सके। क्योंकि वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज अपनी जगह पे हो रही है और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो ये कोर्स करके जो इंजीनियर्स है वो ये कोर्स करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं। फिर अप्लाइड फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, सबसे बड़ा रिसोर्स है फूड ट्रेड के ऊपर, सब पूरी दुनिया टिकी है। वो ट्रेड के अंदर सबसे मेजर चीज़ है खाना, फूड है, जो फूड बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है इंसान के लिए जीने के लिए। तो उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसका मैनेजमेंट बना सकते हैं, कैसे आप फार्मर्स को हेल्प कर सकते हो, कैसे दुनिया के फूड के रिसोर्सेस का सिस्टम आप बना सकते हो। इसके लिए आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, गवर्नमेंट्स के साथ और दीगर कंपनीज के साथ आप काम कर सकते हो। और इसकी भी एक बहुत बड़ी किल्लत है, तो ये काफ़ी इनोवेटिव कोर्सेज है। बहुत सारे इंजीनियर्स इंजीनियरिंग के बाद लाइफ में कुछ आगे करना चाहते हैं, जैसा उनको इंजीनियरिंग नहीं करना है, उनको मैनेजमेंट में आना है, तो वो इंजीनियरिंग के साथ साथ एमबीए नहीं करके इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एक कोर्स करते हैं कि मैं इंजीनियरिंग में भी रहूंगा और मैं मैनेजमेंट की भी पढ़ाई करूंगा और इस तरीके से मैं अपना एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन रन करूं, एक छोटा सा बिजनेस चला सकूं। तो उसके लिए ये कोर्स उसके लिए भी हेल्प करेगा। और बहुत सारी कंपनीज को भी एमएससी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट वाले ग्रेजुएट्स की ज़रूरत होती है। बाकी तो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, वो आप मैकेनिकल की पढ़ाई करके मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से किया जाए, बड़े बड़े कंपनीज है, ऑटोमोबाइल कंपनीज है, प्रोडक्शन कंपनीज है, तो वहाँ पे इसका यूटिलाइज होता है। फिर हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी IELTS इंडिकेटर एक्सेप्ट करती है, ये भी यहाँ पे भी कुछ 5 कोर्स, 80 में से 5 कोर्सेज 1 साल पढ़ाई और 1 साल इंटर्नशिप वाले हैं। इसमें आप 1 साल की पढ़ाई करते हो और 1 साल फुल टाइम काम करते हो। MSc इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, MSc कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, MSc सिविल इंजीनियरिंग, MSc कमर्शियल मैनेजमेंट एंड क्वांटिटी सर्वेइंग, MSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये कोर्सेज है। और ये आपको बताऊं, ये स्कॉटलैंड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। ये 380 एकड़ कैंपस है और इन्होंने अभी एक रिसेंट रोबोट भी बनाया है और ये कोविड की मेडिसिन पे भी काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और टॉप यूनिवर्सिटी है स्कॉटलैंड की, दुनिया में इसको माना जाता है। और रसल ग्रुप की भी एक टॉप यूनिवर्सिटी है। यस प्लीज। बहुत सारे कोर्सेज है, मैंने इसकी लिस्ट स्टूडेंट्स को माइक्रो लेवल में पढ़ने के लिए डाल दिया हूँ, ये आप लोग चेक कर सकते हो। अगर कोई आईटी बैकग्राउंड से है, क्योंकि मैंने आईटी पे कुछ भी नहीं बोला अभी तक, तो जो आईटी से है, कंप्यूटर साइंस से है, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज है, जैसा मास्टर्स इन डेटा एनालिटिक्स डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी से, मास्टर्स इन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट फॉरेंसिक्स है, मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, मास्टर्स इन इंटेलिजेंस सिस्टम, मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी, मास्टर्स इन कंप्यूटर गेम्स टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन क्राइम इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स। ये बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो माइक्रो लेवल पे है। स्टैंडर्ड तो आपको मालूम है, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिजिटल फॉरेंसिक, ये मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद रोबोटिक्स, एक बहुत ही यूनिक कोर्स अभी बहुत डिमांड में है। पहले क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ करता था, अभी क्लाउड कंप्यूटिंग 2-3 साल पहले उसका रीजनेबल डिमांड कम हुआ है। क्लाउड कंप्यूटिंग में इनोवेशन काफ़ी हो गया है। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिस तरीके से आप ऑटोमोबाइल में आप देखोगे, आप कंप्यूटर्स में देखोगे, आप मोबाइल फोन्स में देखोगे कि हर साल और 2 साल में टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। हर फोन अपग्रेड होने के बाद एक नए वर्जन में आता है, तो फिर उसके लिए कुछ न्यू इनपुट
नए एजाज में होता है जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। जैसे पहले BMW, मर्सिडीज, इन कार्स, ये जो सुपर कार्स में जो फीचर्स होते थे वो अभी एक एवरेज कार्स में भी आने चालू हो गए हैं। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एयर कंडीशन में आया है, टीवीज में आया है, टीवी स्मार्ट हो गया है, मोबाइल स्मार्ट हो गया है, फ्रिज स्मार्ट हो गया है। मतलब उनके पास अपना एक आर्टिफिशियल सेंस आ गया है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, जिससे दुनिया में इंसान ने काफ़ी तरक्की किया है। तो ये एक कोर्स बहुत डिमांड में है, जो सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आप मास्टर्स में जा सकते हो। बहुत सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज है। ये पढ़ने के बाद आप आपकी लाइफ में और आगे बढ़ सकते हो। फिर सोशल वर्क और मेडिकल वाले कोर्सेज है जिसके अंदर आप आगे बढ़ सकते हो। यूके में MRCP और FRCP मतलब मेंबरशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन और फेलोशिप और रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन, MBBS के बाद लोग जाते हैं। MBBS विच इज बैचलर्स इन मेडिसिन एंड बैचलर्स इन सर्जरी। उसके बाद ये एग्जाम देना पड़ता है, बड़ा टफ होता है क्रैक करने के लिए। और इसके बाद आप मास्टर्स के लिए अलग अलग कोर्सेज में जा सकते हो। एंगुलर रस्किन यूनिवर्सिटी में न्यूरोलॉजी साइंस के ऊपर बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तो अगर कोई स्टूडेंट्स वहाँ से है तो वो उसका रिसर्च कर सकता है। यस ये आज क्योंकि मैं एक यूके यूनिवर्सिटी बेस्ड कंसल्टेंट हूँ, मेरा स्पेशलाइजेशन है यूके यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैं स्टूडेंट्स के साथ ट्रैवल करता हूँ, मैं मेरी टीम, और फिर हम हमारे स्टूडेंट्स को लंदन में पहुँच के हेल्प भी करते हैं। लंदन के बाद वो और भी आगे सिटीज़ में जाते हैं, जैसे ब्रैडफोर्ड, न्यूकैसल, बर्मिंघम, कैम्ब्रिज। तो लंदन नज़दीक भी है इंडिया से, 8 आवर्स लगते हैं, US कनाडा 20-24 घंटा लगता है। तो ये कुछ हम उसके पिक्चर्स है जो हम स्टूडेंट्स के साथ ट्रैवल करते हैं, और इससे थोड़ा सा और हेल्प करने का मौका मिलता है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी की पिक है, ये मेरे पिक्चर है, मेरे स्टूडेंट्स है। बीच में इंटरनेशनल रीजनल डायरेक्टर है रेबेका होल्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच की। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच, आपको शायद मालूम होगा कि हम हमारे मोबाइल में एक टाइम सेट करते हैं, ग्रीनिच मीन टाइम, GMT 5.5 जो हम सेट करते हैं मोबाइल में या घड़ियों में, तो वो यही है, डिजिटल मोबाइल में यूजुअली सेट करते हैं। तो वो यही यूनिवर्सिटीज पे से ये लाइन क्रॉस होती है, और यहाँ पे उसका क्लॉक भी है, क्लॉक टावर भी है, और क्लॉक टाइमिंग भी सेट होता है। तो बहुत सदियों साल पहले यहाँ से ही वो 300-400 साल पहले वो 5.5 प्लस GMT सेट हुआ है। यस प्लीज आगे बढ़िए। एक थोड़े से और पिक्चर्स है, वहाँ पे स्टूडेंट निसाऊ के साथ टीमिंग करते हैं, और निसाऊ इज एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हम लोग ने बनाया है, नेशनल इंडियन स्टूडेंट एलुमनी यूनियन यूके। तो वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको पार्ट टाइम जॉब्स के लिए हेल्प करते हैं, इंटर्नशिप्स के लिए हेल्प करते हैं, और फिर साथ ही साथ स्टूडेंट्स वहाँ पे जाने वाला इंडियन स्टूडेंट वोट करने के लिए अलाउड है, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए अलाउड है। जब वो ये सब करता है तो उसको क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं, उसका क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रांग होती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स की अपनी एक क्रेडिबिलिटी स्टैंडिंग हो जाती है, और वो वहाँ के इंडियन हाई कमीशन से जुड़ाव भी रहता है। तो जो भी स्टूडेंट जो इस भी कंट्री में जाए, US जाए, कनाडा जाए, न्यूजीलैंड जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, तो वहाँ पे कोशिश करें कि वो वहाँ की इंडियन कम्युनिटी के साथ जुड़ा रहे, इंडियन हाई कमीशन के साथ टच में रहे। तो कोई जिस तरीके से अभी ये पैंडेमिक आया है और रिपाट्रिएशन फ्लाइट्स चल रहे हैं, तो बहुत ही तब उस वक्त बहुत अच्छा हो जाता है कि आपका कनेक्शन, आपका रिसोर्स यूज करके आपको और आपके फ्रेंड्स को सपोर्ट कर सकते हो। तो हम लोग ने ये एक निसाऊ करके फॉर्म किया हेल्प करने के लिए। मैं ये छोटा सा वीडियो रन करूंगा, ये 2 मिनट्स का वीडियो है, ये स्टूडेंट ने बनाया है जो मेरा स्टूडेंट है, और उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। तो वो आप Hello, this is Vipul Alve from University of Greenwich campus right now. I'm here studying MBA in International Businesses, all thanks to Skillsoft Overseas Education, Samir sir, Marufa ma'am, and everyone who guided me to get here. Samir sir helped me to secure a loan from Axis Bank, and he also guided me through the entire visa process. Also,
I would like to say that I met Sameer sir 3 months ago when I got into his office for my friend's visa, and I inquired about this course which was displayed outside his office. 3 days after that day, he called me up and he asked whether I'm ready for it or not. I inquired with my family and they gave me a great signal. And here I am in London, fulfilling my dreams. It's wonderful out here. The campus is beautiful. Here's a little tour for you. Thank you. यस, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स इंटरनेशनल कंट्रीज में अगर वो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो वो क्रिकेट काउंटी क्लब्स और फुटबॉल काउंटी क्लब्स के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि इंडिया में ये दो स्पोर्ट्स फेमस है। तो वहाँ पे एसेक्स जो एसेक्स क्रिकेट काउंटी क्लब है, ससेक्स क्रिकेट काउंटी क्लब, यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब है, वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पे सी टीम में रजिस्टर करके अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। उसके बाद फिर वो अपने आप को अपग्रेड करके बी टीम और ए टीम, जहाँ पे उनको पे मिलेगा, ऐसे भी काम कर सकता है। ये खेलने का भी उनको मौका मिल सकता है। तो पैशन से प्रोफेशनल लेवल तक भी जा सकते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ। यस, ये बहुत सारी बैंक्स इंडिया में एजुकेशन लोन ऑफर करती है। जिस तरीके से इंडिया में कार लोन है, होम लोन है, उसी तरीके से ये एक प्रोडक्ट है हमारे कंट्री का। 2002 में जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर थे उस टाइम एजुकेशन के, मिस्टर शरद पवार, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये तब से लेके आज तक ये यहाँ पे है और इसका स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिला है। बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज इंडिया के एजुकेशन लोन को एक्सेप्ट करता है, लोन सैंक्शन लेटर्स को एक्सेप्ट करता है। तो एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब उसके ये बैंक है जहाँ पे बच्चे लोगों को फाइनेंसेस के लिए हेल्प मिलेगी। इनक्रेड, क्रेडिला और अवांस एजुकेशन लोन, ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। ये भी स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड करती है। यस, इसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट होगा, तो वो हर एक के स्टूडेंट्स के ऊपर है कि ले नहीं ले, लेकिन जो नेशनलाइज्ड बैंक्स के लेटर्स भी है वो भी आपको काम आते हैं और वीज़ा आपका बहुत ही इजीली इनके वजह से मिल जाता है। यस, ओके, तो मैं मेरा सेशन यहाँ पे एंड करता हूँ। होप आप सबको अच्छा लगा होगा। ये मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, स्किल्स ऑफ ओवरसीज एजुकेशन मेरे कंपनी का नाम है। 9820109494। आप मुझे कॉल करके भी पर्सनली इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ज़्यादा करके व्हाट्सएप के ऊपर मैं बहुत इजीली अवेलेबल हूँ इंफॉर्मेशन देने के लिए। बहुत एक अच्छा मीडियम है, तो मैं आपको पर्टिकुलर लेवल पे बहुत अच्छे से आपके क्वेरीज को सॉल्व करूँगा। और इसके अलावा मैं आप लोग से मतलब अगर आप जो क्वेश्चन आंसर्स है तो आप पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर करूँगा। Thank you so much, Sameer Ubair sir. I request Ms. Asma Firdaus to kindly conduct the Q&A session. There are few questions which have been raised. Thank you, Shehzad. So I see that very few questions have been raised by the attendees, as the slides were self-explanatory and also simple. So the first question I would like to ask is, I want to do my PG in New Jersey. Please let me know the procedure. This is the first question they have posed. Okay. New Jersey. New Jersey. Yes, New Jersey is in United States of America. Yes. So you need to apply. You need to identify university, and where is this question? नीचे से फर्स्ट है क्या?
थोड़ा क्वेश्चन रिपीट करेंगे? जी, I want to do my PG in New Jersey. Please let हाँ. me know the procedure. ओके, प्रोसीजर तो डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करनी है और पीजी में आपको बताना है कि आपको कौन सा पीजी करना है, मतलब आपने क्या किया है, बैचलर्स डिग्री किस में किया है, पीजी किस में करना चाहते हो, और फिर वो यूनिवर्सिटी में आपको देखना है कि आपको जीआरई देना है या जीमैट देना है, उसके साथ साथ IELTS या TOEFL का भी एग्जाम देना होगा और फिर आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वहाँ के डॉक्यूमेंट का नाम है I-20 के लिए आपको 25 to 30 लाख रुपीस शो करना पड़ेगा। या तो आपके पास फंड्स, फैमिली फंड्स अवेलेबल होने चाहिए या तो फिर एजुकेशन लोन लेंगे और इस तरीके से आप न्यू जर्सी में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट Which क्वेश्चन। are the suitable countries for studying BTech at low cost? Suitable countries for studying BTech. बीटेक, सुटेबल कंट्रीज स्टडिंग बीटेक, आई वुड रिकमेंड, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बीटेक इंडिया में ही करो, क्योंकि इंडिया में आपका बीटेक की फीस मैक्सिमम, अगर इंडिया में मैक्सिमम 70-80,000 to 1 लाख रुपीस भी होती है, तो 4 साल की डिग्री 4 लाख में हो जाएगी। तो और लिविंग एक्सपेंसेस अगर आप 2 से 3 लाख भी इंडिया में पकड़ लो तो 7 लाख रुपए में आप डिग्री कंप्लीट करोगे इंडिया में और मास्टर्स के लिए जा सकते हो। नहीं तो फिर अब बाहर जाने के लिए देन यू नीड टू चूज एनी यूरोपियन कंट्री अपार्ट, यूके कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन, क्योंकि वहां पे ईयर 1 पढ़ाई है, ईयर 2 पढ़ाई है, ईयर 3 प्लेसमेंट ईयर है और ईयर 4 फिर पढ़ाई है। तो अगर ऐसा आपने कोर्स लिया तो ईयर 1 पढ़ाई करेंगे, ईयर 2 पढ़ाई करेंगे, उसकी एवरेज फीस 10 लाख होगी। ईयर 3 में आप 12 से 13 लाख अर्न करेंगे और वही उसमें से आप फाइनल ईयर में उसको भरेंगे, तो आपकी 20 लाख रुपए में यूके में भी हो सकती है। या अगर आप यूरोपियन कंट्री जा रहे हो जैसे कि चेक रिपब्लिक या फिर पोलैंड, तो वहां पे 1 साल की फीस 4 से 5 लाख रुपए आएगी। 4 साल का कोर्स होगा, प्लेसमेंट ईयर उधर होता नहीं है क्योंकि वो इंडियन स्टाइल में होता है 4 साल की डिग्री, लेकिन बहुत रिकमेंडेड नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक अच्छा कुछ सपोर्ट सिस्टम है या कोई वहाँ पे सीनियर आपके पहचान से या कोई फैमिली मेंबर या ऐसा कोई पढ़ाई कर रहा है। तो ऐसे कुछ कंट्रीज है जहाँ पे आप लो कॉस्ट में जा सकते हो, लेकिन फिर भी जाने का भी अपना एक कॉस्ट होता है इनिशियल टाइम्स में, क्योंकि ये स्टार्ट है पढ़ाई का। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको इंडिया में मौका मिले तो इंडिया में क्या है कि माइट भी आपको 50,000 रुपए में भी 50,000 to 70,000 फीस होती है 1 साल की, जिसमें आप लो कॉस्ट में इंडिया में पढ़ के फिर मास्टर्स के लिए जा सकते हो। नहीं तो यूरोपियन कंट्रीज में आप जा पाएंगे। यस प्लीज। अच्छा, SAP सॉफ्टवेयर करने से बैरूनी ममालिक में क्या बेनिफिट्स हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग अब्रॉड विद SAP सॉफ्टवेयर? SAP सॉफ्टवेयर जी, क्या नाम है इनका? फैजान पटेल। या फैजान पटेल जी। SAP सॉफ्टवेयर, अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया है और MBA किया है तो SAP करने के बाद आपको जैसे इन्वेंट्री को मैनेज करना है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इन्वेंट्री मैनेज करना है, फिर कोई इंजीनियरिंग कंपनी हो या कोई रिटेल कंपनी हो तो वो उसका बेनिफिट होता है। और अब्रॉड ही नहीं, उसका अब्रॉड से रिलेशन नहीं है, उसका कंपनी से रिलेशन है। अब्रॉड में भी उसका बहुत बेनिफिट है क्योंकि वो एक इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर है, तो आप वो उसकी महारत हासिल करके आप कहाँ पे भी काम कर सकते हो। आप मल्टीपल मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन आपकी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज होनी चाहिए उसमें। Yes, please. Yeah, the next question by Afsana Saeed. I'm doing my MSc nursing in obstetrics and gynecology on deputation. I'm a government staff. I want to work abroad. Is there any age limit for nurses? Oh yes, very good question. सारे क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे थे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप यस, आप बहुत सारी कंट्रीज में जा सकते हो क्योंकि आप रजिस्टर्ड नर्स हो
और आप गवर्नमेंट स्टाफ हो, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप जाएंगे तो जाएंगे क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आप इधर गवर्नमेंट जॉब में हो। और अगर आपको जाना है तो कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जा सकते हो। मैंने अभी रिसेंटली एक नर्स को यूके यूनिवर्सिटी में भेजा हूँ। IELTS में आपको थोड़े ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होते हैं, सब में 7 बैंड स्कोर करने होते हैं। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जा रहे हो तो यूके, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो वहाँ पे क्योंकि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, पेशेंट्स आपसे कुछ बात करेंगे तो आपको उनकी बात समझ में आनी चाहिए, गलत दवाई नहीं दे देना चाहिए। तो इस वजह से ये IELTS का इंग्लिश का बैंड जरा यहाँ ज़्यादा होता है, यूजुअली 6 या 6.5 बैंड होता है। बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए आपको, अगर आप मास्टर्स इन नर्सिंग में जाना चाहते हो तो उसके अंदर 7 बैंड स्कोर करना है। और आपको कुछ कंट्रीज में जैसे यूके में, US में आपको डायरेक्ट यहाँ पे जॉब्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि नर्स और डॉक्टर्स आर इन शॉर्ट स्किल्स लिस्ट। आई होप दिस क्वेश्चन has been answered. Next please. What will be the average cost of graduation in UK? मैंने तो इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन दिया अभी मेरे प्रेजेंटेशन में। फिर भी एवरेज कॉस्ट सबसे कम ही है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई 1 साल की होती है, तो आपको पहले साल की फी भरनी है। तो पहले साल की फी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर है तो 12 लाख है, 12 लाख भी हो सकती है। 2000 स्कॉलरशिप मिली तो 10 लाख तक भी आएगी। और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच की फीस है 16 लाख, और हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी की फी है 22 लाख, और क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी की MBA की फीस है 38 लाख। तो और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की तो और भी ज्यादा है। तो मिनिमम 10 लाख टू मैक्सिमम 50 लाख आपके चॉइस करने के ऊपर है और आपके बजट के ऊपर है। तो एवरेज कॉस्ट होगा 15 से 16 लाख ये फीस होगी। और लिविंग एक्सपेंसेस आपको बैंक में शो करना होता है 11 लाख रुपीस, अगर इनर लंदन है तो, और आउटर लंदन है तो 9 लाख। तो ये एवरेज इसी तरीके से US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। क्योंकि USA में 2 साल का MBA होगा, तो अगर वहाँ की फीस 13 लाख या 14 लाख या 15 लाख है तो आपको 2 साल तक भरनी है। मतलब 15 लाख 2 साल की कोर्स की फीस 30 लाख और 10 लाख रुपए लिविंग एक्सपेंसेस, तो 40 लाख। अगर आपने पार्ट टाइम काम करके लिविंग कॉस्ट भी रिकवर कर लिया तो तभी भी 30 लाख रुपए फीस आएंगी। लेकिन UK में आप सेकेंड ईयर में ही 15 से 16 लाख रुपए अर्न करने की आपको मौका मिलता है। Yes. How to evaluate universities abroad with good colleges in India itself? Very good question. Sakib Mohammed, how to evaluate is abroad in compared to some really good colleges in India itself? अभी एक्चुअली आप मतलब अगर आप एक एग्जांपल दे देंगे, फॉर एन एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में MBA करना है, IIM में MBA करना है, तो आज IIM में आज 14 IIMs है, 14 IIMs है, IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, IIM कोझिकोडे, ऐसा 14 IIMs है। अगर इंडिया के वो टॉप आप उसको मानते हो, क्योंकि आपको पहले ये क्वेश्चन करना है कि आपके लिए इंडिया में टॉप क्या है और फिर आप उसको बाहर किस तरीके से कंपेयर कर रहे हो। तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे वर्ल्ड रैंकिंग है, QS वर्ल्ड रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, और यहाँ पे आप इनका रैंकिंग चेक करते हो और उसके साथ साथ इंडिया में इवेल्युएट करते हो। एक हो गया रैंकिंग, दूसरा हो गया इंडिया में एक काइंड ऑफ टैबू है कि पैकेज, सैलरी या पैकेज। तो जरूरी नहीं है कि सारे यूनिवर्सिटीज में आपको बड़ी पैकेज ही मिलेगी। आप वो डिसाइड करते हो आपके ऊपर कि आपको कहाँ पे पढ़ना है और उसके बाद आपको क्या करना है, किधर काम करना है। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा और उसमें आपको क्वेश्चंस डालने पड़ेंगे, आपका बहुत जेनरिक क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको कम से कम 6 से 7 पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट है, और वो आपके लिए सेल्फ रिलायबल रहेगा आंसर कि ये एक यूनिवर्सिटी है, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, मेरे लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर आप एक वेबसाइट है webometrics.info,
यहाँ पे 30,000 से ज्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज है, उसमें इंडिया के भी सारे यूनिवर्सिटीज और इंडियन फ्लैग उसमें आ जाता है, और जो भी कंट्री की यूनिवर्सिटी है उसका फ्लैग वहां पे आता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया मलेशिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके में भी टॉप है और वर्ल्ड में भी टॉप है, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड यूएस में टॉप है, और इंडिया में जो टॉप है वो सारे उनके सबके रैंकिंग 2000 वर्ल्ड के यूनिवर्सिटीज के बाहर आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडियन यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं है या बाहर की यूनिवर्सिटीज उसके मुकाबले अच्छी नहीं है। तो दोनों का अपना अपना इवेल्युएशन होता है। तो आपको एक FAQ बनाना पड़ेगा आपके लिए, या फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस फॉर योरसेल्फ कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। तो ये इस तरीके से आप इसको मैप अप करेंगे, एंड देन इट कम्स योर फाइनेंशियल प्लानिंग कि आपके पास कितना फंड्स है स्पॉन्सर करने के लिए कि आप उस यूनिवर्सिटी को हासिल कर पाएंगे। बाकी फिर वो बहुत ही माइक्रो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको पर्सनल लेवल पे दे सकता हूँ। I hope this would be a good answer. Next question. It's a question posed by Rehan Pathan. A student holding American passport, does he have to appear for SAT? Yes, if university requires, if SAT is mandatory, he needs to give SAT. Otherwise, if he has a bachelor's degree, no, he has a 12th studies from US board, so might not, according to the university, he would be given the waiver for SAT. SAT अगर वहां से पढ़ाई किया है तो शायद नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो ईवी लीग कॉलेजेस में भी अगर उसकी यूनिवर्सिटी आती है तो, और नहीं तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए SAT कंपलसरी है। फिर क्योंकि यूएसए में 600 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, तो उनको देखना पड़ेगा कि वो किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जहाँ पे SAT लगेगा या नहीं लगेगा। Yes, please. Saqib has a question. How to decide on country for MS? Also, there are some courses which have their semesters in multiple places. Can you highlight more on those? Yes, very good question. मल्टीपल कंट्रीज, जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल एक्सपोजर का अपना एक बेनिफिट होता है। तो अगर आप मल्टीपल कंट्रीज के मल्टीपल सेमेस्टर्स को ऑप्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके साथ उसका एक कॉस्ट भी आ जाएगा। आपको मल्टीपल ट्रैवल करना पड़ेगा। समझो लंदन बिजनेस स्कूल है, उसका मास्टर्स का फीस 1 CR तक जाता है, और वो 3 कंट्रीज में स्प्रेड है, यूके में है, यूएस में है, हांगकांग में है, और एक पार्ट यूएई में, दुबई में भी है। तो आप इन कंट्रीज ट्रैवल करोगे तो वो कॉस्टिंग भी आपका आएगा। फिर उसका रीजन क्या है, क्यों आप वो पढ़ना चाहते हो, तो आपको थोड़ा रिट्रोस्पेक्टिव करना पड़ेगा, अपने आप को पूछना पड़ेगा। यस, बेनिफिट्स तो उसके बहुत सारे हैं। आप मल्टीपल कंट्रीज ट्रैवल करते हो और बहुत सारा इंटरनेशनल एक्सपोजर और एक्सपीरियंस भी मिलता है आपको। और रही बात MS की, सो यू मीन MSc इन कंप्यूटर साइंस। आपको ये देखने का है कि अगर वो यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छी है, या MS इन इंजीनियरिंग में जा रहे हो, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग में जा रहे हो, तो वो बहुत अच्छी है, तो फिर आप यूजुअली MS बिलोंग्स टू USA एंड MSc बिलोंग्स टू UK एंड ME एंड MTech बिलोंग्स टू इंडिया। ये टर्मिनोलॉजीज इस तरीके से उसको डिफाइन करते हो आप। तो इस multiple countries would bring a cost to you, and then you can plan to do it. Yes, the next question by Afsana. Which country is suitable for quality education and reasonable fees for MBBS? One of the very good and strategic question. यहाँ पे एक टेक्निकल रिकॉग्निशन आता है। आपको मैं इंडिया से बोलना चालू करूंगा और दूसरे कंट्रीज पे, यूके और यूएस पे एंड करूंगा। इंडिया में अगर आप MBBS की पढ़ाई करने के लिए लेते हो तो सबसे पहले आपको अभी नीट का एग्जाम देना होगा, और वही नीट का एग्जाम स्टूडेंट्स को बाहर जाने के लिए भी देना होगा, क्योंकि MBBS एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्टूडेंट्स को सीट्स की लिमिटेशंस है। बाहर कंट्रीज में इसकी बहुत ही ज्यादा फीस है। यूके में इसकी फीस 5 साल की 2 करोड़ रुपए तक आएगी।
इंडिया में ये मॉनिटर्ड होता है बाय MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो नीट भी उसमें आता है। फिर उसके बाद अगर जो भी बच्चा नीट देके इंडिया में पढ़ता है, उसको नीट मिनिमम मार्क्स स्कोर करना है 107 बाहर भी जाने के लिए, बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए, लेकिन वो MCI की लिस्ट में होनी चाहिए यूनिवर्सिटी। और वो बाहर से जब पढ़ के इंडिया आता है तो उसको एक एग्जिट एग्जाम देना है, और एग्जिट एग्जाम देने के बाद इंडिया में वो, क्योंकि वो इंडियन स्टूडेंट है, इंडिया में आना चाहता है, तो वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता है। और अगर वो नीट देके फॉर एन एग्जांपल यूके जाता है तो उसको पी लैब देना पड़ता है, या तो यूक्लैट एग्जाम देना पड़ता है, यूनिवर्सिटी क्लिनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, और फिर वहाँ की फीस भी बहुत ज्यादा होती है। तो वो रीजनेबल तो वो होगा नहीं, वो तो इट वुड बिकम एन एक्सपेंसिव डील फॉर द स्टूडेंट्स। इंडिया में अगर आपको पढ़ना है तो इंडिया में सीट्स का अपना लिमिटेशन है। अभी इसके अलावा दूसरे कंट्रीज है, जैसे चाइना है, रशिया है, फिलीपींस है, यूक्रेन है, कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज है जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, और उसके बाद वो USMLE करने यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं। USMLE का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंस एग्जामिनेशन। अगर आपने USMLE पास किया, जो कि इंडियन एग्जाम की तरह, एग्जिट एग्जाम की तरह होता है, टफ एग्जाम होता है, वहां से बैचलर्स करने के बाद तो आपको इंडिया में भी प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। तो अगर आप इंडिया में पढ़ाई कर रहे हो और इंडिया का एग्जाम पास करके, इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस वालों को इंडिया में भी एग्जाम स्टार्ट किया है, जो कि मैंने जहाँ तक सुना हूँ, जिसको एग्जिट एग्जाम बोलते हैं। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे तो वो एग्जिट एग्जाम नहीं देना है। तो बहुत सारा टेक्निकलिटीज इसमें अभी MBBS की पढ़ाई को है, क्योंकि इसके अंदर आप सीधा ह्यूमन लाइफ के साथ ये करते हो, डील करते हो। तो इस वजह से डॉक्टर को एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी कहा जाता है। कितना भी वो 40 साल भी प्रैक्टिस कर ले तो स्टिल ही सेल्फ आई एम अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। तो कंट्रीज बहुत एमिकेबल डिसीजन होता है लेने के लिए इन टर्म्स ऑफ योर बजट एंड मोर अदर इंफॉर्मेशन। यस प्लीज। Yeah, the next question, are there any avenues to avail student loans that does not involve interest? Unfortunately, there are none of the organizations in India which doesn't has a component of interest in it, apart from any NGOs like Ratan Tata Foundation, Mahindra Scholarship, Fair and Lovely Scholarship। वहाँ पे वो NGOs हो सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, जो कुछ स्टूडेंट्स को कुछ अमाउंट, हद तक अमाउंट देंगे, वो उनके लिए स्कॉलरशिप की तरह आएगा या रिफंडेबल लोन की तरह आएगा, जो वो पढ़ाई करने के बाद पे कर सकते हैं। तो इसके अपने लिमिटेशंस है, लेकिन यस, ये चीज एग्जिस्ट करती है। और एजुकेशन लोन फ्रॉम द बैंक्स हैज इंटरेस्ट बाय द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Yes, I would like to take up the last question for the session. Is Germany a nice place to pursue masters for an English speaker? Is university education free there? Okay, very good technical question. Yes, Germany is one of the sought country to study masters in automobile engineering or computer science, but at the same time you need to see that the university, for an example, Technical University Dresden, and there are other technical universities in Germany which are government universities। लेकिन आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना जरूरी होता है B1 B2 लेवल पे, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज आएगी तो आप वहां पे बात कर सकते हो, पार्ट टाइम काम कर सकते हो। एट द सेम टाइम आपको ये देखने का है कि यूनिवर्सिटी का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश होना चाहिए। जैसा हम इंडिया में हिंदी बोलते हैं, हिंदी कंट्री है, कंट्री में हिंदी बोला जाता है, लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। तो पढ़ाई का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होगा तो आपको एडवांटेज होगा, नहीं तो अगर आपको जर्मन लैंग्वेज B1 B2 लेवल पे नहीं आता है तो आपको पढ़ाई में बहुत दिक्कत होगी। और बहुत कम यूनिवर्सिटीज है, 20 से 25 यूनिवर्सिटीज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है जो
एजुकेशन फ्री देता है, फिर भी आपको वहां के दाउची बैंक में इंडिया में एक ब्लॉक अकाउंट ओपन करना होता है, जहां पे आपको 6 लाख रुपए लिविंग एक्सपेंसेस के लिए पार करना पड़ता है। तो इसको आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना होगा। और यस, इट वुड बी अ विन विन सिचुएशन। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज अच्छे से आता है या आपने लिविंग एक्सपेंसेस आपके पास रखा है और आपको ये मौका मिलता है फ्री एजुकेशन का, तो यस आप जा सकते हो। यस, आई होप सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए होंगे। I hope so. यस, Asma ma'am? क्वेश्चन Most of the questions have been covered, but yes, there are repeated questions. Okay. I No. think, yeah. So thank you so much. Also, I see that since this is the last session for our phase 1, and we have with us our president of Association of Muslim Professionals, Mr. Amir Idrisi Saab, with us. I would request Amir bhai to just share some highlight before we end the session for today. Amir bhai, are you available? जी शहजाद भाई, या तो थैंक यू वेरी मच समीर भाई, अस्मा मैडम, शहजाद भाई एंड एवरीवन आपकी एल्स। आवाज नहीं आ रही आमिर भाई। हेलो, हाँ आ कैन रही यू हियर मी? है थोड़ी शोर। हाँ यस, या so thank you everyone, especially Sameer bhai, Asma madam, Shehzad bhai, and every other speaker who has spoken in this 11 lecture series on career guidance. Alhamdulillah, it has been wonderful experience for us as well. तकरीबन 1200 से ज़्यादा लोगों ने जो है इन सेशंस को अटेंड किया पिछले 11 दिनों में। वी हैड गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम अराउंड 2000 प्लस स्टूडेंट्स, लेकिन मेरे ख्याल से लोगों को जूम कैसे यूज़ करने का, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस कैसे अटेंड करने का, उसमें शायद स्टूडेंट को थोड़ी सी डिफिकल्टी है। तो जो लोग अटेंड नहीं कर पाए हैं उनके लिए हम लोग आगे भी प्लान करेंगे इंशाल्लाह। दैट इज़ वन पॉइंट। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो है स्पेसिफिक लेक्चर, स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्शन प्लान कर रहे हैं। तो एक नई सीरीज़ जो है अनाउंस होगी, हम लोग व्हाट्सएप पर सारे स्टूडेंट्स को भेजेंगे। जैसे बहुत सारे करियर ऑप्शन जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट है, जेनेटिक साइंसेज हैं, बायोटेक्नोलॉजी है। ऐसे निश एरिया में हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनकी एक लेक्चर सीरीज हम लोग आगे भी प्लान करेंगे इंशाल्लाह, और आप सब लोगों को इन्फॉर्म करेंगे ताकि जिनको जिस पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्ट है उस पर जो है वो लेक्चर आप अटेंड कर सकें। दूसरा एक अहम पॉइंट ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन को आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो लाइव सेशन में आप लोग जो है, हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो वीडियोस हैं सारे लेक्चर्स की जितने भी हुए हैं वो उसी लिंक पर जहां आपने रजिस्ट्रेशन किया था वहां पर अपडेटेड है। आप लोग जाकर वहां वो लेक्चर्स दोबारा सुन सकते हैं। सिर्फ आज का जो लेक्चर है वो कल अपलोड होगा, उसके अलावा सारे लेक्चर्स वहां पर अपलोडेड हैं। दिस इज़ वन। दूसरी बात यह है कि अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे पास एक्सपर्ट्स की एक लिस्ट है, उसकी लिंक आपके साथ चैट बॉक्स में आई विल आस्क शहजाद भाई टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। आप जब भी कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने जिस भी इंडस्ट्री से ताल्लुक है आप वो सर्च करिए हमारी वेबसाइट पर और उनसे बात करिए, और दे विल आंसर यू इंशाल्लाह। जो भी क्वेश्चन रहेंगे, जो भी गाइडेंस है, जो भी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, हमारे वॉलंटियर्स आप लोगों को उसमें हेल्प करेंगे। हमारी ये कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरीके से गाइड कर सके, इस हेल्प कर सके। जब तक ये लॉकडाउन नहीं था तो पूरे इंडिया में अलग अलग शहरों में हमारे इस तरीके से करियर गाइडेंस सेमिनार्स होते थे। लॉकडाउन की वजह से वो नहीं हो पा रहा है, एग्ज़ाम्स जो रिजल्ट्स का टाइम है, इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन सेशंस प्लान किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा स्कॉलरशिप के ऊपर भी हम लोगों का एक सेशन प्लान है जो नेक्स्ट संडे को है लेक्चर, कि अलग अलग जगह पे कौन कौन सी स्कॉलरशिप स्पेशली माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स, इसके अलावा कॉर्पोरेट की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत सारे अलग अलग ट्रस्ट की स्कॉलरशिप है। तो कैसे अप्लाई किया जाए, आप लोग वो सजेशन भी, वो भी सेशन जो है आप अटेंड कर सकते हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हम लोगों को आए हैं, हम लोग सारे ही लोगों को एक साथ उसमें अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा हैं वो लोग यूट्यूब पर और फेसबुक पर वो लेक्चर्स को सुन सकते हैं। और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि आप सब लोगों को व्हाट्सएप पे अलग अलग स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन रेगुलर हम लोग भेजते रहें। तो ये हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जो भी किसी किस्म का गाइडेंस चाहता है उसको कहीं पर भी मायूस ना होना पड़े, और हम लोग उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हेल्प कर पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ में हेल्प कर पाएंगे, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपको आपका जो डिज़ायर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर दिया जाए।
हम नहीं दे सकेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्सपर्ट से कनेक्ट करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट और है कि आप लोग भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने की कोशिश करें, आप लोग भी कनेक्ट हों, अलग अलग प्रोजेक्ट से EMP के उसमें वॉलंटियर करें। जो लोग इसमें ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स भी हैं आज के सेशन में, खासतौर पर मुझे लगता है कि वो लोग जिनका ग्रेजुएशन हो गया है या जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ऐसे लोग भी आज के सेशन में हैं। तो आप लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। वी नीड वॉलंटियर्स लाइक यू। जैसे फॉर एग्जांपल समीर भाई हैं जो आज के हमारे स्पीकर हैं, तो ही इज़ वर्किंग विद EMP सिंस लास्ट मोर देन 10 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह। जब से EMP शुरू हुई है इनिशियल डेज से हमारे साथ में है। तो इस तरीके के जो लोग आते हैं तो हम लोग क्या है कि बहुत सारे लोगों को हेल्प कर पाते हैं। हर एक नया बंदा बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा, ऑर्गेनाइज वे में हेल्प करेगा, तो हम जो है काफ़ी बड़ा बदलाव ला सकते हैं इंशाल्लाह। आपके कुछ सजेशंस हों, फीडबैक्स हों, वो भी आप लिख कर हम लोग को ईमेल करिए। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा वो भी हम लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करिए, सो दैट हम लोग इम्प्रूव कर सकें। कोई पॉजिटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स है, दोनों लिख कर दीजिए, ताकि हम लोग जो है इसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं अगले अगले सीरीज़ में वो कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, खासतौर पर EMP टीम का जिन्होंने पूरे सीरीज को, पूरे सेशन को मैनेज किया। जो हमारा प्रोजेक्ट है SDP, अस्मा मैडम जो उसकी इंचार्ज हैं, अस्मा मैडम का शुक्रिया। सारे स्पीकर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ऑफिस टीम ने बहुत मेहनत की है इस पूरे सेशंस को ऑर्गेनाइज करने में। थैंक यू एवरीवन, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। Jazakallah. Thank you. So, thank you so much, everyone, for attending this session. Thank you so much, Samir Bhai, for such an insightful session. Everything was explained in a way like on the plate, and it was in a very simple way. So it was really great. And I hope this session must have helped all those students who have a desire to go abroad for studies. It is a wonderful experience to study abroad, as I have been a part of it. So I would recommend this to students who want to experience different culture, as you get opportunity to meet and interact with people from different countries. Right. So as this is the last session of our phase 1 online career guidance seminar, and we have found it, mashallah, very successful, and we have a plan to come up soon with a phase 2 of this online career guidance seminar. So we will keep you all updated about the same through emails and messages, inshallah. So we would request you all to keep coming to these sessions like these, which are organized by Association of Muslim Professionals. These are absolutely free sessions, and these sessions are conducted by professionals and experts. So we'll now be ending this session with a dua. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعالى بهذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر لنا امورنا كلها مع راحتي لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you so much, everyone, for participating, and we'll be ending this session. This is Shehzad signing off for now. Thank you.